Namaste students, I am Jalin Dr. Aziz Mohammed Khan from Department of Food and Biotechnology, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapith Women's University, Jaipur. Today I am going to discuss about the topic pasteurization. Uh, for the heat penetration, heat penetration means the temperature is so much that it can penetrate to the microorganism, to penetrate to the cell wall of the microorganism and can disrupt the cell wall. That is the penetration method, and there are two methods of heat penetration. The first one is pasteurization and the second one is sterilization. So the first one is pasteurization, which is the most important and mostly used in the dairy industries for the sterilization of the milk. And pasteurization involves heating food to a temperature that kills disease causing microorganisms and substantially reduces the level of spoilage organism. And pasteurization involves to kill all kinds of microorganisms by using the heat uh, sterilization method. Pasteurization aims to reduce the number of viable pathogens so they are unlikely to cause disease. And heat also destroys enzymes that make milk spoil. For example, the microbes use lactic acid and can break the bonds of the casein, and the enzymes which are used in the casein hydrolysis in the microorganism are destroyed by heat penetration methods such as pasteurization. What is the method of pasteurization? Pasteurization is mostly dependent on the low temperature holding pasteurization, low temperature long time, heat temperature short time, high temperature short time is HTST, and ultra heat treatment or ultra high temperature. So there are three modes of heat treatment using the pasteurization: low temperature, long time, high temperature, short time, and ultra heat treatment or ultra high temperature. First is low temperature holding pasteurization. In this method, the method is used to pasteurization, and it consists of jacketed wort surrounded by either circulating water, steam, or heating coils of water or steam. In this method, the fluid milk is placed in a pasteurizer which consists of wet surrounded by either circulating water, steam, or heating coils or water or steam. To cool the milk, either the milk is allowed to cool in the wet or the milk is removed from the wet. The batch or low temperature time or holder pasteurization process is the traditional method of pasteurization. तो इस मेथड में क्या होता है कि मोस्टली जो मिल्क होता है उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, वो भी 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद में मिल्क को रैपिडली कूल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो मिल्क होता है उसको जैकेटेड ये वेट होते हैं उनके अंदर रखा जाता है और उसका फिर टेम्परेचर दिया जाता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट्स के लिए। और उसमें दो मोड्स होते हैं, या तो यहाँ पे हीट करने के बाद में इमीडिएटली उसी जैकेट के अंदर, उसी रिएक्टर के अंदर या तो कूलिंग सिस्टम होता है या फिर उसके पास में कोई और सिस्टम होता है जहाँ पे उसको उसी वक्त कूलिंग कर दी जाती है। तो उसमें जैसे ही हीटिंग होती है उसके फ़ौरन बाद में उसको कूलिंग कर दिया जाता है।
That is the basic principle of the low temperature LT, low temperature long time. नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और कंटिन्यूस फ्लो। इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे कि मिल्क इज हीटेड फॉर 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स एंड बिफोर बीइंग चिल्ड बैक टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है मिल्क को 15 सेकेंड्स के लिए और उसके जस्ट बाद में उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये बेसिक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मीन्स कम टाइम के लिए लेकिन टेम्परेचर इज हाई। दिस पास्चराइज स्प्लिट पास्चराइजर फॉर पास्चराइजेशन मिल्क, juice, egg products, and the pasteurizer complies with European safety standard and STST plate pasteurizer have 72 डिग्री सेंटीग्रेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द रेंज। ये इसकी रेंज होती है और लेकिन टाइम जो होता है वो 15 सेकेंड्स होता है अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम 15 सेकेंड्स होता है। और ये इसका बेसिक HTST का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है और उसको कम वॉल्व के लिए अप्लाई किया जाता है। अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, दैट इज द UHT। UHT is a continuous process and the product is packaged after sterilization into sterile containers. Typically, temperature and times specified in ultra high temperature treatment for milk are 130 degrees centigrade to 150 degrees centigrade for 1 to 3 seconds। हम ये जो टाइम है 1 to 3 सेकेंड्स क्यों देते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल्क को अगर हम बॉईल कर देते हैं तो एक तो उनके जो अंदर जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो डिनेचर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो मिल्क जो केसिन प्रोटीन्स होते हैं वो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम के लिए हीटिंग नहीं देते हैं। लेकिन UHT में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग होती है और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में 72 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है लेकिन टाइम और ज़्यादा कम हो गया है। तो ये इसका बेसिक होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, क्योंकि इतने जो 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो ऑटोक्लेव को भी सर्वाइव कर सकते हैं वो भी किल हो जाते हैं। ये मोस्टली उन माइक्रोब्स के लिए होता है जो पैथोजेनिक होते हैं और जो बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। जो हीट टॉलरेटेबल माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए ही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन मेथड यूज किया जाता है। और इसमें जो भी मिल्क होता है उसको जैसे ही हीटिंग होती है उसके बाद में उसको कूल किया जाता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर उससे भी कम, ताकि जो मिल्क होता है वो डिस्ट्रॉय ना हो। क्योंकि अगर उसको हम कूल नहीं करते हैं तो उसका जो टाइम होता है कूलिंग का वो बढ़ जाता है, ठीक है। धीरे धीरे अगर नेचुरली अगर हम उसको कूल करते हैं तो नेचुरली कूल होता है तो उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक उसका टेम्परेचर वही रहता है और डाउन होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर उसको हम तुरंत अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आते हैं तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है और जो एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अंदर ये ट्यूब मिक्स होता है जो हाई हीट एफिशिएंसी होती है जिनके अंदर, और टेम्परेचर डिफरेंस is between the product and the heating medium is very small in the ultra high temperature. The other processes used to pasteurization milk include the ultra pasteurization, which involves the heating of milk and cream to at least 280 degrees centigrade, 280 degrees Fahrenheit, that is the 138 degrees centigrade for
2 seconds. But because of the less stringent packaging, they must be refrigerated immediately. The shelf life of milk is extended 60 to 90 days after opening. Spoilage time for the ultra pasteurized products are similar to those of the conventionally pasteurized products. So ये एक नेक्स्ट स्टेज है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की, जिसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और टाइम हो जाता है 2 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में स्टीम पास्चुराइजेशन, ये ऑटोक्लेव की तरह होता है, जिसमें स्टीम के थ्रू जो हीटिंग होती है वो स्टीम से होती है, जैसे कि ऑटोक्लेव में होती है। और इसमें स्टीम को 6 to 8 सेकेंड्स के लिए देते हैं, जो हीटिंग इसमें होता है 88 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इसमें जो हीटिंग होती है वो स्टीम से होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए टेम्परेचर कम 88 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, जैसे ये पैथोजेनिक इकोलाई, साल्मोनेला, लिस्टेरिया, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। उसके अलावा इरेडिएशन पास्चुराइजेशन, the foods such as poultry, red meat, spices, fruit, and vegetables are subjected to small amount of gamma rays, and this process effectively controls vegetative bacteria and parasitic foodborne। तो ये जो टेक्निक है इरेडिएशन पास्चुराइजेशन, ये गामा रेज के साथ में पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए होता है। इसमें कम टेम्परेचर होता है, लेकिन इरेडिएशन भी होता है गामा रेज से, इससे जो माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो पास्चुराइजेशन से उनका स्टेरिलाइजेशन होता है, जैसे योक, ड्राई एग, होल एग, मिल्क, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो एग मिल्क होते हैं, जूसेज होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, आइसक्रीम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पास्चुराइजेशन से उनको स्टेराइल किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।